سب سے پہلے آپ کو ایک اہم خبر سے آگاہ کریں کہ فیصل آباد ڈویژن میں بجلی بحران شدت اختیار کر گیا۔ فیسکو کو 400 میگا واٹ شارٹ فال کا سامنا۔ ٹوبا ٹیکسنگ میں بجلی کی بندش کا دورانیہ 12 گھنٹوں سے تجاوز کر گیا۔ فیصل آباد اور چنیوٹ میں 6 سے 7 گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ جاری ہے۔ جنگ میں 8 گھنٹے تک بجلی بند رہنے لگی۔ لوڈ شیڈنگ سے معمولات زندگی کے ساتھ ساتھ کاروبار بھی متاثر ہے۔ آپ کو اپڈیٹ کر رہے ہیں۔ فیصل آباد ڈویژن میں بجلی بحران شدت اختیار کر گیا۔ فیسکو کو 400 میگا واٹ شارٹ فال کا سامنا۔ ٹوبا ٹیکسنگ میں بجلی کی بندش کا دورانیہ 12 گھنٹوں سے تجاوز کر گیا۔ فیصل آباد اور چنیوٹ میں 6 سے 7 گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ جاری ہے۔ جنگ میں 8 گھنٹے تک بجلی بند رہنے لگی۔ لوڈ شیڈنگ سے معمولات زندگی کے ساتھ ساتھ کاروبار بھی متاثر ہو رہا ہے۔ آپ کو اہم خبر سے آگاہ کر رہے ہیں کہ فیصل آباد ڈویژن میں بجلی بحران شدت اختیار کر گیا۔ فیسکو کو 400 میگا واٹ شارٹ فال کا سامنا ہے۔ ٹوبا ٹیکسنگ میں بجلی کی بندش کا دورانیہ 12 گھنٹوں سے تجاوز کر گیا۔ فیصل آباد اور چنیوٹ میں سے 6 سے 7 گھنٹوں کی لوڈ شیڈنگ جاری ہے۔ ٹوبا ٹیکسنگ میں بجلی کی لوڈ شیڈنگ کا جن بے قابو۔ شہری اور دیہی علاقوں میں بجلی کی بندش کا دورانیہ 12 گھنٹوں سے بھی تجاوز کر گیا۔ گھریلو اور کمرشل صارفین مشکلات کا شکار ہے۔ تاجر برادری کا کہنا ہے آخری اشرے میں کاروبار ٹھپ ہو کر رہ گئے ہیں۔ اسی والے سے مزید تفصیلات جانتے ہیں مبشر حسن جی مبشر، کیا کہنا ہے تاجروں کا؟ بالکل، ٹوبا ٹیکسنگ اور اس کے گرد و نواح کے علاقے شدید گرمی کی لپیٹ میں ہیں اور ایسے میں بجلی کی غیر اعلانیہ لوڈ شیڈنگ کا دورانیہ بھی عروج پر پہنچ چکا ہے۔ سحری اور افطار کے اوقات میں بھی بجلی کی لوڈ شیڈنگ جاری ہے اور فیسکو لوڈ شیڈنگ پر کنٹرول کرنے میں بری طرح ناکام ہو چکی ہے۔ اس حوالے سے شہری خاصے نالا دکھائی دے رہے ہیں، ان سے بات بھی کرتے ہیں اور جانتے ہیں۔ سر، آپ بتائیے گا کہ کتنے گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ ہو رہی ہے، کیا پریشانی ہو رہی ہے، کاروبار کے حالات کیسے ہیں؟ دیکھیں جی، صبح دکان پہ آتے ہیں بجلی بند ہوئی ہوتی ہے، دوپہر ہوتی ہے بجلی بند ہوتی ہے، 12 گھنٹے جو بجلی بند ہے، کیا کاروبار ہوں گے، کیا لوگ کمائیں گے؟ یہ تو کرونا مسئلے سے بھی زبردست یہ ہمارے لیے یہ مصیبت آ گئی ہے اور بغیر کسی بات بتائے یہ ہر روز بجلی کی لوڈ شیڈنگ جاری ہے۔ شام کو جب گھر جاتے ہیں افطاری کے ٹائم، اس ٹائم لائٹ نہیں ہے، رات کو سو رہے ہیں اس ٹائم لائٹ نہیں ہے، کیا پریشانی ہوتی ہے؟ باجی یہ ہے کہ جب افطاری کرنی ہوتی ہے اس وقت بھی یہ لوڈ شیڈنگ ہے، جب وہ سحری ہوتی ہے اس وقت بھی لوڈ شیڈنگ ہے اور وہ اس نے ہمارا جینا مشکل کر دیا ہے۔ اچھا، بالکل، لوڈ شیڈنگ سے شہری جو ہے وہ خاصے جو ہے وہ ان کو مشکلات کا شکار دکھائی دے رہے ہیں۔ آپ بتائیے گا کہ لوڈ شیڈنگ کتنے گھنٹے کی ہو رہی ہے؟ گرمی بہت ہے، کیا پریشانی ہو رہی ہے؟ گرمی بہت زیادہ ہو رہی ہے، لوڈ شیڈنگ انتہا ہو رہی ہے، 1 گھنٹہ لائٹ آ رہی ہے، 1 گھنٹہ بند ہو رہی ہے، بہت پریشانی ہو رہی ہے، اوپر سے گرمی بھی انتہا کی شدت سے ہے۔ کیا مطالبہ کرنا چاہیں گے آپ؟ گورنمنٹ سے یہ مطالبہ ہے کہ پلیز رمضان میں یہ تو نہیں کرے، ٹھیک ہے، لائٹ تو مکمل دے، چھوٹے بچے کدھر جائیں؟ انتہائی مشکلات کا شکار دکھائی دے رہے ہیں۔ شہریوں نے حکومت سے مطالبہ کیا ہے کہ بجلی کی جو غیر اعلانیہ لوڈ شیڈنگ جاری ہے اس پر فوری طور پر کنٹرول کیا جائے۔ فیسکو کو چاہیے کہ یہ لوڈ شیڈنگ کا شیڈول جاری کرے تاکہ تمام تر افراد کی مشکلات کم ہو سکیں۔ کاروباری افراد آپ ہمیں اپڈیٹ کر رہے تھے۔ اب رخ کریں گے فیصل آباد کا۔ فیصل آباد میں شدید گرم موسم میں بجلی کی گھنٹوں اعلانیہ اور غیر اعلانیہ لوڈ شیڈنگ نے شہریوں کی زندگی اجیرن کر دی۔ شہریوں نے ارباب اختیار سے بجلی کی لوڈ شیڈنگ فوری ختم کرنے کا مطالبہ کیا ہے۔ آپ کو اہم خبر سے آگاہ کر رہے ہیں کہ فیصل آباد میں شدید گرم موسم میں بجلی کی گھنٹوں اعلانیہ اور غیر اعلانیہ لوڈ شیڈنگ نے شہریوں کی زندگی اجیرن کر دی۔ شہریوں نے ارباب اختیار سے بجلی کی لوڈ شیڈنگ فوری ختم کرنے کا مطالبہ کر دیا۔ اسی پر مزید بات کرتے ہیں عمیر عظمت سے۔ جی عمیر، آگاہ کریں تفصیلات سے۔ آپ کو اپڈیٹ کر رہے ہیں کہ فیصل آباد میں شدید گرم موسم میں بجلی کی گھنٹوں اعلانیہ اور غیر اعلانیہ لوڈ شیڈنگ نے شہریوں کی زندگی اجیرن کر دی ہے۔ شہریوں نے ارباب اختیار سے بجلی کی لوڈ شیڈنگ فوری ختم کرنے کا مطالبہ کیا ہے۔ آپ کو اپڈیٹ کر رہے ہیں فیصل آباد میں شدید گرم موسم میں بجلی کی گھنٹوں اعلانیہ اور غیر اعلانیہ لوڈ شیڈنگ نے شہریوں کی زندگی اجیرن کر دی ہے۔ شہریوں نے ارباب اختیار سے بجلی کی لوڈ شیڈنگ فوری ختم کرنے کا مطالبہ کیا ہے۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں عمیر عظمت جی۔ عمیر، کیا اپڈیٹ ہیں آپ کے پاس؟ فیصل آباد میں بجلی کی جو اعلانیہ اور غیر اعلانیہ گھنٹوں کی لوڈ شیڈنگ کا سلسلہ جاری ہے، جس کی وجہ سے شہریوں کو شدید گرم موسم میں پریشانی کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ میرے ساتھ اس وقت شہری موجود ہیں، ان سے ہم اس حوالے سے بات کریں گے ان کے علاقوں میں جو بجلی کی لوڈ شیڈنگ ہے اس کی کیا صورتحال ہے اور کن مشکلات کا سامنا آپ کو کرنا پڑ رہا ہے۔ آپ بتائیے، آپ کے علاقے میں جو بجلی کی لوڈ شیڈنگ ہے یا بجلی کی صورتحال کیا ہے؟
دیکھیں جی، ایسا لگتا ہے جیسے نا خان صاحب گئے ہیں تو اپنے ساتھ بجلی کے کھمبے ہی لے کر چلے گئے ہیں. مطلب کہ آپ دیکھیں 18 گھنٹے لوڈ شیڈنگ ہو رہی ہے. اس قدر گرمی ہے، گرمی میں اوپر سے روزے ہیں، مطلب جینا محال ہو چکا ہے. یہ بڑے بڑے دعوے کرتے تھے یہ ہم آئیں گے تو 24 گھنٹے لائٹ دیں گے آپ کو، جی فلاں چیز سستی کر دیں گے. نہ کچھ سستا ہوا ہے، ٹھیک ہے، نہ بجلی ٹھیک ہوئی ہے. گورننس کہتے تھے جی خان صاحب کے پاس جو ہے وہ گڈ گورننس نہیں ہے، تو ان کے پاس کون سا ہے؟ مطلب کہ ایک نظام انہوں نے تہس نہس کر کے رکھ دیا. ایک اچھا بھلا ملک جو ہے وہ چل رہا تھا، ایک سیٹ اپ تھا، بہترین چل رہا تھا. ان کو جناب آئیے، میں تو ان کو یہی کہوں گا کہ امپورٹڈ گورنمنٹ جو ہے وہ نامنظور ہے. سر آپ بتائیے، آپ کس علاقے سے، آپ کے علاقے میں کتنے گھنٹے بجلی بند ہو رہی ہے؟ سر جدوں نماز دا ٹائم آਉਂਦਾ نا بجلی بند ہو جاتی. کدی گھنٹہ آ گئی، گھنٹہ چل گئی، 2 گھنٹے آ گئی، 2 گھنٹے چل گئی. عجیب اتفاق بنیا ساڈے ملک دے وچ. کسے نوں ٹکن نہیں دندے. کرو کو 5 سال بندہ پورا تے کرے نا. عوام نوں کی کر رہا؟ نہ وہ ڈلیور کرے گا تو جائے گا گھر نوں. اچھا یہ بتائیں، سحری اور افطاری کے ٹائم پہ بجلی آتی ہے؟ ادوں تے آؤندی ہی نہیں. افطاری دے ٹائم نہ پتہ نہیں جان کے خراب کرتے. عجیب اتفاق ہے. میں چنگوں آیا اسی واسطے بھی یہ کی رولا بنیا ساڈے. میں کہ فیصل آباد بھی بند ہے. جہے شہر جاؤ اتنے بجلی بند ہے. کی رولا کی اس ملک میں؟ بالکل شہری کہتے ہیں کہ گھنٹوں کی اعلانیہ اور غیر اعلانیہ لوڈ شیڈنگ ہو رہی ہے. ماہ سیام ہے، سحری اور افطاری کے اوقات میں بھی بجلی بند ہو رہی ہے، جس کی وجہ سے مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے. مزید کچھ لوگوں سے بات کریں گے. سر کیا کہتے ہیں آپ کے علاقے میں بجلی کی کیا صورتحال ہے؟ بجلی کی صورتحال بہت گمگیر ہے جی. بہت زیادہ تنگ ہے لوگ. شہری کے وقت بجلی چلی جاتی ہے، افطاری کے وقت بھی چلی جاتی ہے. رات 11 بجے گئی ہے اور ٹھیک 12-1 بجے آئی ہے. گرمی کی وجہ سے غریب لوگ بڑے تنگ ہیں. اوپر سے گرمی ہے، اوپر سے یہ لوڈ شیڈنگ کا عذاب ہم پہ ڈال دیا گیا ہے. بلکہ اس سے پہلے والی حکومت میں یہ اتنی لوڈ شیڈنگ نہیں تھی. انہوں نے آتے ہی لوڈ شیڈنگ کا جو ہے نا عوام کے گلے میں طوفان ڈال دیا، جس کی وجہ سے عوام شہری کہتے ہیں کہ لوڈ شیڈنگ کا عذاب جو ہے وہ اس حکومت نے ان کے سر پہ ڈال دیا ہے. تو حکومت اور ارباب اختیار جو ہیں وہ اس معاملے کا نوٹس لیں اور بجلی کی جو لوڈ شیڈنگ ہے اس کا سلسلہ. غیر اعلانیہ لوڈ شیڈنگ سے شہری کافی پریشان ہیں. بہت شکریہ عمیر، آپ ہمیں تفصیلات سے آگاہ کر رہے تھے. فیصل آباد میں بجلی بحران شدت اختیار کر گیا. بجلی کی لوڈ شیڈنگ کا دورانیہ 6 سے 7 گھنٹے تک پہنچ گیا. غیر اعلانیہ لوڈ شیڈنگ تاجر طبقہ شدید پریشان ہے. کہتے ہیں لوڈ شیڈنگ سے کاروبار ٹھپ ہو گیا ہے. حکومت لوڈ شیڈنگ پر قابو پائے. مزید جانتے ہیں فضیل احمد سے. جی فضیل، آگاہ کیجیے گا تفصیلات سے. جی بالکل، فیصل آباد میں لوڈ شیڈنگ کا شدید جو مسئلہ ہے وہ سر اٹھا رہا ہے. عید بھی قریب آ رہی ہے اور فیصل آباد کی متعدد مارکیٹوں میں فی گھنٹے کے بعد جو لوڈ شیڈنگ ہے وہ جاری ہے. فیسکو کی جانب سے تاجروں کا کہنا ہے کہ غیر اعلانیہ لوڈ شیڈنگ کا سلسلہ جو ہے وہ رک نہیں پا رہا. ہر گھنٹے کے بعد لائٹ جو ہے وہ غائب ہو جاتی ہے، جس کی وجہ سے کاروبار کرنے میں شدید مشکلات کا سامنا ہے. تاجر میرے ساتھ موجود ہیں، ان سے پوچھتے ہوں کیا کہتے ہیں اس حوالے سے. جی بتائیے گا شیخ صاحب، کیا مطالبہ کریں گے اور لائٹ بند ہونے سے کیا مسائل ہیں، کیا مشکلات ہیں، کیا کہیں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دراصل نا اب جب سے یہ گورنمنٹ آئی ہے بجلی مہنگی بھی انہوں نے بہت کر دی ہے. اس کے بعد بجلی ہے بھی نہیں ہے. تقریباً ہر 2 گھنٹے کے بعد گھنٹہ چلے جاتی ہے. 7 سے 8 گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ ہو رہی ہے، جس سے کاروبار بالکل تباہ ہو گیا ہے. بجلی مہنگی ہونے کی وجہ سے کاریگر بھی لوموں پہ بھی کام نہیں کرتا. اور آپ دیکھیں کہ نا ہر چیز مہنگی ہے بجلی یہ شارٹیج کی وجہ سے. بجلی پہ پوری کرنا چاہے تو پوری فرنس آئل دیں. فیصل آباد اتنا بڑا گریڈ اسٹیشن ہے، یہ شیخو پورہ تک فضیل احمد ہمیں اپڈیٹ کر رہے تھے. چنوٹ کی طرف رخ کریں اور آپ کو بتائیں کہ چنوٹ میں بجلی کی لوڈ شیڈنگ نے عوام کی مت مار دی. 6 سے 7 گھنٹے کی بجلی بندی سے کاروبار، گھریلو معاملات سب متاثر ہونے لگے. اسی والے سے مزید تفصیلات جانتے ہیں وقار گھمن سے. جی وقار، وہاں کیا صورتحال ہے؟ بالکل، چنیوٹ میں بھی لوڈ شیڈنگ کا جو جن ہے بے قابو ہو چکا ہے. ہر گھنٹے بعد بجلی بند ہو رہی ہے اور ہر گھنٹے بعد آ رہی ہے، جس کی وجہ سے لوگ کافی پریشان ہیں. یہ صورتحال شہر کی ہے، جبکہ دیہی علاقوں میں اس سے بھی بری صورتحال ہے. وہاں پہ کئی گھنٹے بجلی نہیں آ رہی. اس وقت ہم چنیوٹ کی سب سے بڑی مارکیٹ فرنیچر مارکیٹ میں موجود ہیں. یہاں کے جو دکاندار ہیں، تاجر ہیں، کافی پریشان ہیں. ان سے بات کرتے ہیں. کتنے گھنٹے بجلی آ رہی ہے آپ کے یہاں پہ؟ تقریباً 1.5 سے 2 گھنٹے لائٹ جا رہی ہے. پہلے 1 گھنٹہ جاتی تھی، اب 1.5 2 گھنٹے لائٹ ہی نہیں آتی، جس کی وجہ سے سب دکاندار پریشان ہیں. اوپر سے رمضان ہے، ہر بندہ روزے کی حالت میں بجلی کی وجہ سے بہت پریشان ہے. دن رات یہی مسئلہ ہے؟ دن رات یہی مسئلہ ہے. کاروباری بہت پریشان ہیں، روزے والے بھی بہت پریشان ہیں. کیا کریں بتائیں، بجلی ہے نہیں، کاروبار ٹھپ ہو گئے ہیں. کاروبار متاثر ہو رہا ہے لوڈ شیڈنگ سے؟ جی بالکل، ورک شاپیں بالکل بند ہو گئی ہیں. ورک شاپ میں کام بھی نہیں ہو رہا ہے.
माल तैयार ही नहीं हो रहा। चांद रात पे लोग क्या करेंगे, बच्चों के कपड़े कहाँ से लेंगे। आप तफसीलात से आगाह कर रहे थे। झंग का रुख करें और वहाँ अपने सिटी 41 के नुमाइंदे अवैस खान से बात करते हैं। जी अवैस, वहाँ क्या सूरत हाल है? बिल्कुल, जंग में बिजली की लोड शेडिंग और कीमतों में इजाफे के बाद पावर लूम इंडस्ट्री की जानिब से शदीद तशवीश का इजहार किया गया है। इस हवाले से चेयरमैन पावर लूम इंडस्ट्री हाजी आज़ाद नासिर मेरे साथ मौजूद हैं, से बात करेंगे। सर बताइएगा क्या सूरत हाल देख रहे हैं लोड शेडिंग के बायस और बिजली की कीमतों में इजाफे के बायस? जी यहाँ पे आपकी मेहरबानी, आप यहाँ पे तशरीफ़ लाए। हमारी इंडस्ट्री ऑलरेडी जो है ना, हमारी पावर लूम इंडस्ट्री और कॉटन की इंडस्ट्री ऑलरेडी हम लॉस में जा रहे हैं और बुरा हाल है। बहुत मार्केट के हालात ख़राब हैं। कोई 3 माह से हम शदीद बहरान का शिकार है मार्केट, लेकिन फिर भी चले हम सर्वाइव कर रहे थे। लेकिन इस वक्त जो पोजीशन है वो ये है कि लोड शेडिंग ने जो है ना जी, वो हमारा तमाम रई से जो कसर थी वो भी ख़त्म कर दी है। अब मेरा नहीं ख्याल है कि हम इस काबिल हैं कि ईद पे हम अपने मज़दूरों को, लेबर को सैलरी दे सकें। तो मैं रिक्वेस्ट करता हूँ वज़ीर आज़म पाकिस्तान मियाँ शहबाज शरीफ साहब से कि जिस तरीके से ऑलरेडी उन्होंने कमिटमेंट कर ली है कि 1 मई से हम लोड शेडिंग का ख़ात्मा कर देंगे, अगर वो ये खात्मा नहीं करते तो फिर हमारे लिए मुश्किल हो जाएगा और हम फिर शायद एहतजाज की कॉल दें। मैं दोबारा रिक्वेस्ट करूँगा वज़ीर आज़म साहब से कि वो मेहरबानी करें और फौरी लोड शेडिंग का खात्मा किया जाए, फौरी, जिससे कम अज़ कम हम मज़दूरों को उनकी तनख्वाहें देने के काबिल हो जाएं। इस वक्त पोजीशन ये है कि ना हम कपड़ा बना सकते हैं, ना धागा बना सकते हैं, और मज़दूर अपने बेचारे जिनके डेली वेजेस के जो मज़दूर थे वो तो बहुत ही परेशान हैं। तो मैं आपके वसासत से, सिटी 41 की वसासत से रिक्वेस्ट करूँगा। वहाँ क्या तफसीलात हैं आपके पास? रमज़ानुल मुबारक का आखिरी अशरा जारी है, जिसमें शॉपिंग का जो है वो बहुत ज़्यादा ज़ोर रहता है, लेकिन ताजिर हजरात को बिजली की लोड शेडिंग की वजह से शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। बिजली की लोड शेडिंग की वजह से जहाँ पर घरेलू सार्फिन इंतहाई तसब्जुब का शिकार हैं, परेशानी का शिकार हैं, क्योंकि सहर व अफ्तार में जो लोड शेडिंग होती है उसकी वजह से शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। लेकिन अब क्योंकि आखिरी अशरा है और ये अशरा जो है वो कारोबारी हजरात के लिए सीज़न होता है, इसके अंदर सबसे ज़्यादा बिजनेस जो है वो जनरेट किया जाता है, लेकिन यहाँ पर बिजली की लोड शेडिंग की वजह से शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ा है ताजिरों का। हमारे साथ लोग मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं, उनका इस हवाले से क्या कहना है। मैं बताइएगा, बिजली की लोड शेडिंग जो है वो आपके आखिरी अशरे में सीज़न में चल रही है, क्या कहेंगे? जी देखें, ये जो हमारे ये आखिरी अशरे में बिल्कुल कारोबारी दिन होते हैं, इसमें इन्होंने लोड शेडिंग इतनी दिन, ये अरूज पे है लोड शेडिंग। बस हम हुकूमत से यही अपील कर सकते हैं कम से कम रमज़ान के आखिरी अशरे में लोड शेडिंग ना की जाए, बस हमें बिजली सही तरह मुहैया की जाए। जी बिल्कुल, बिजली सही तरह फराहम की जाए। हमारे साथ और भी ताजिर मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। भाई बताइएगा, क्या बिजनेस करते हैं और आपके बिजनेस पे किस तरह इफेक्ट कर रही है लोड शेडिंग? लोड शेडिंग बहुत से इफेक्ट कर रही है। हमारा अपनी शॉप है और इस वजह से लोड शेडिंग ना बहुत ज़्यादा हो रही है, तो ईद भी करीब आ रही है तो कारोबार में ना बहुत नुकसान के शहरी इलाकों में 4 से 6 घंटे की बिजली की गैर एलानी लोड शेडिंग की जा रही है। बहुत शुक्रिया वसीम, आप हमें अपडेट कर रहे हैं। आपको बताएं, चिन्योट जिला इंतजामिया की नाक़िस हिकमत अमली, रमजान बाजारों में सब्सिडाइज्ड घी नायाब। खरीदार कहते हैं किसी स्टॉल पर सस्ता घी दस्तयाब नहीं है, रोजे में लाइनों में लगकर ख्वार हो रहे हैं। शहरियों ने सब्सिडी को टोपी ड्रामा करार दे दिया। आपको अपडेट कर रहे हैं, चिन्योट जिला इंतजामिया की नाक़िस हिकमत अमली, रमजान बाजारों में सब्सिडाइज्ड घी नायाब। खरीदार कहते हैं किसी स्टॉल पर सस्ता घी दस्तयाब ही नहीं है, रोजे में लाइनों में लगकर ख्वार हो रहे हैं। शहरियों ने सब्सिडी को टोपी ड्रामा करार दे दिया। बाबर मुनीर से जानते हैं। जी बाबर, आगाह कीजिएगा, कितनी सब्सिडी दी गई थी? बिल्कुल जी, जिले इंतजामिया चिन्योट सस्ते घी की जो फराहमी है रमज़ान बाज़ारों में वो यकीनन नहीं बना पा रही। दूसरी जानिब डिप्टी कमिश्नर चिन्योट की जानिब से ये कहा गया था कि आम मार्केट से 50 रुपये घी जो है वो सस्ता फ़रोख्त किया जाएगा, लेकिन शहरियों का कहना है, जो ख़रीदार हैं, ईद की भी आमद है और शहरियों की जानिब से बड़ी तादाद में जो है वो रमज़ान बाज़ारों का रुख किया गया और शहरी ख़रीदारी कर रहे हैं, लेकिन रमज़ान बाज़ार में कहीं किसी स्टॉल पर भी घी जो है वो नहीं मौजूद। इस वजह से खरीदार जो है वो परेशान है। घी सस्ता मिला है जी? नहीं मिल रहा जी, डीसी साहब ने 50 रुपये का ऐलान किया सस्ता मिलेगा, लेकिन यहाँ पे मिल ही नहीं रहा, दे ही नहीं रहे, कहते हैं ही नहीं, कल आए परसों आए, लगातार चक्कर लगा रहे हैं। हाँ जी, क्या कहेंगे, घी मिल रहा है जी? जी नहीं मिल रहा जी, घंटे भी आधा किलो दे रहे हैं सिर्फ। प्याज आधा किलो दे रहे हैं, घंटा खड़ोगे प्याज जी हाँ वही प्याज घंटा खड़े होते हैं और एक आधा किलो दे रहे हैं, वो भी किलो एक कम से कम 1 किलो तो देना। सब्जी आपने पता किया 2 स्टॉल लगे हुए, घी किसी से भी नहीं मिला? किसी से भी नहीं मिला, कश्मीर भी बिल्कुल नहीं मिला। दूसरे जो है वो रेट हाई पे बताते हैं, लेकिन दे वो भी नहीं जाए, कश्मीर तो है ही नहीं किसी। बिल्कुल जी, डिप्टी कमिश्नर की जानिब से जब यहाँ पर विजिट किया गया तो उन्होंने हिदायत की थी इन स्टॉल्स मालकान को कि जो घी है वो आम मार्केट से 50। हमें अपडेट कर रहे थे। आगे बढ़े और बात करें, फैसलाबाद में जिला के मुतादिद रमजान बाजारों में ईद बाजार कायम होने लगे।
बाजारों में सार्फिन की बड़ी तादाद उमड़ आई। रमजान बाजार कल से गैर फाल होंगे या कब तक फाल रहेंगे, हुकूमत पंजाब की जानिब से हतमी फैसला ना हो सका। आपको अपडेट कर रहे हैं। फैसलाबाद में जिला के मुतअद्दिद रमजान बाजारों में ईद बाजार कायम होने लगे। बाजारों में सार्फिन की बड़ी तादाद उमड़ आई। रमजान बाजार कल से गैर फॉल होंगे या कब तक फॉल रहेंगे, हुकूमत पंजाब की जानिब से हतमी फैसला ना हो सका। आपको अहम खबर से आगाह कर रहे हैं। फैसलाबाद में जिला के मुतादिद रमजान बाजारों में ईद बाजार कायम होने लगे। बाजारों में सार्फिन की बड़ी तादाद उमड़ आई। रमजान बाजार कल से गैर फाल होंगे या कब तक फाल रहेंगे, हुकूमत पंजाब की जानिब से हतमी फैसला ना हो सका। आपको आगाह कर रहे हैं। फैसलाबाद में जिला के मुतअद्दिद रमजान बाजारों में ईद बाजार कायम होने लगे। बाजारों में सार्फिन की बड़ी तादाद उमड़ आई। रमजान बाजार कल से गैर फॉल होंगे या कब तक फॉल रहेंगे, हुकूमत पंजाब की जानिब से हतमी फैसला ना हो सका। फैसलाबाद में जिला के मुतादिद रमजान बाजारों में ईद बाजार कायम होने लगे। बाजारों में सार्फिन की बड़ी तादाद उमड़ आई। रमजान बाजार कल से गैर फाल होंगे या कब तक फाल रहेंगे, हुकूमत पंजाब की जानिब से हतमी फैसला ना हो सका। आपको अपडेट कर रहे हैं। फैसलाबाद में जिला के मुतअद्दिद रमजान बाजारों में ईद बाजार कायम होने लगे। बाजारों में सार्फिन की बड़ी तादाद उमड़ आई। रमजान बाजार कल से गैर फॉल होंगे या कब तक फॉल रहेंगे, हुकूमत पंजाब की जानिब से हतमी फैसला ना हो सका। इसी पर बात करते हैं मोहम्मद रमजान मिर्जा से। जी रमजान, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, ज़िला इंतजामिया की जानिब से पहले फैसला ये किया गया था 27 रमजान मुबारक तक रमजान बाजार जो हैं वो फाल रहेंगे, जिसके बाद इन रमजान बाजारों को ईद बाजारों के अंदर जो है वो मुंतकिल कर दिया जाएगा। गुज़िश्ता रोज़ चीफ सेक्रेटरी की सदारत में मुनक़दा इजलास में हदायत तो की जा रही है कि इन बाजारों को जो है वो आगे तक ले जाया जाए, लेकिन अभी तक इसका हतमी फैसला जो है वो नहीं हो सका कि आया कि कल से रमज़ान बाजार जो हैं वो फाल रहेंगे या ईद तक फाल रहेंगे या कल से इन बाजारों को गैर फाल जो है वो कर दिया जाएगा। तहम बहुत से रमज़ान बाजार ऐसे हैं जहां पर सार्फिन का लंबा रश जो है वो नज़र आ रहा है। एग्रीकल्चर पर फेयर प्राइस शॉप्स हों या चीनी के स्टॉल्स हों, सस्ते आटे के स्टॉल्स हों, घी के स्टॉल्स हों, वहां पर रश नज़र आ रहा है। हम इस वक्त मदीना टाउन के रमज़ान बाजार में मौजूद हैं, जहां पर कसरे बहबूद सनतजार और ज़िला इंतजामिया के ताउन से यहां पर एक ईद का स्टॉल जो है वो लगा दिया गया। हमारे साथ इस वक्त इंचार्ज खालिदा रफीक मौजूद हैं, इनसे बात भी करते हैं। मैडम ये बताइएगा कसरे बहबूद की जानिब से क्या क्या चीज़ें जो है वो स्टॉल में रखी गई? अस्सलाम वालेकुम जी, चूँकि रमज़ान का महीना है, ईद की आमद है, तो हमारी कोशिश ये थी कि हम लोग रमज़ान बाज़ार में ऐसी चीज़ें लेकर आएँ जो एक आम आदमी की पहुँच में भी हों। उसमें हमने हैंडीक्राफ्ट्स रखी हैं, बच्चों के गारमेंट्स हैं, ज्वेलरी है और इसके अलावा पेंट ट्राउज़र्स हैं जिसका आजकल के बहुत रुझान है ख़वातीन में, तो ये चीज़ें हम सब लोग जो हैं अपने इस पे लेके जाएँ। इसके साथ साथ हमारे साथ सनज़ार का स्टॉल है, जो कि मैं सोशल वेलफेयर की रिप्रेजेंटेटिव हूँ, तो इस वक्त हम दोनों स्टॉल्स को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, सनज़ार फैसलाबाद को और कसरे बहबूद को। तो सनज़ार फैसलाबाद के स्टॉल के ऊपर भी कपड़े हैं, हैंडीक्राफ्ट्स की चीज़ें हैं और पेंटिंग्स हैं हमारे पास। इस तरह से सब चीज़ें जो है यहाँ पर स्टॉल जो है वो लगा दिए गए हैं। सार्फिन जो रमजान मिर्जा, आप हमें तफसीलात से आगाह कर रहे थे। आगे बढ़े और आपको बताएं, पंजाब समेत चनियोट में डीजल का बहरान शिद्दत अख्तियार कर गया। डीजल की किल्लत के बायस जहां किसान परेशान, वहीं ट्रांसपोर्टर सरापा एहतजाज। डीजल ना मिलने पर ट्रांसपोर्टर्स ने गाड़ियां पार्क कर दी, जिसके सबब मुसाफिरों को शदीद परेशानी का सामना है। आपको अपडेट कर रहे हैं। पंजाब समेत चनियोट में डीजल का बहरान शिद्दत इख्तियार कर गया। डीजल की किल्लत के बायस जहां किसान परेशान हैं, वहीं ट्रांसपोर्टर सरापा एहतजाज हैं। इसी हवाले से मजीद बात करते हैं नुमाइंदा सिटी 41 अब्दुल कदीर से। जी अब्दुल कदीर, आगाह करें तफसीलात से। रोड में डीजल की शॉर्टेज है, जिसके बायस एक तो किसान शदीद परेशान है, तो दूसरी जानब ट्रांसपोर्टर तबका जो है वो हाथ पर हाथ रख के बैठा है। गाड़ियों की बंदिश के बायस एक तो मुसाफिर परेशान है और दूसरी जानब ट्रांसपोर्टर तबका जो है वो शदीद परेशान है। हमारे साथ कुछ ट्रांसपोर्टर मौजूद है, उनसे बात करने की कोशिश करते हैं। सर ये कि डीजल की बंदिश है, क्या परेशानी होती है? डीजल मिलता ही कोई नहीं पिया, ब्लैक मेल से 170 तुंदे पैन बो इन्हों साड़ी रड़ी कट दे पाए। बिल्कुल सर, आप देखिए कि डीजल मिल नहीं रहा, क्या कहते हैं? खिदमत जनाब, अस्सलाम वालेकुम सर। डीजल की बहुत परेशानी जनाब, हर इंसान परेशान है, वैसे भूख मिटी हुई है चलिए जनाब, पर मेहरबानी करके डीजल मिल रहा है, वो 200 रुपये लीटर डीजल ब्लैक में मिल रहा है। सर आप क्या कहते हैं? भाई ये ईद पे मौके पर ऐसे नहीं करना चाहिए था, आवाम को आने जाने की। अब्दुल कदीर हमें अपडेट कर रहे थे। आगे बढ़े और आपको बताएं कि फैसलाबाद इंडस्ट्रियल स्टेट डेवलपमेंट एंड मैनेजमेंट कंपनी के सनतकारों के मसाइल बढ़ने लगे। एशिया का सबसे बड़ा इंडस्ट्रियल जोन सियासी और सरकारी अफसरान की चपकलिश की नजर होने लगा।
बैरूनी सरमायाकारी आना तो दूर, मकामी सतह पर इन्वेस्टर्स परेशान हैं। मजीद जानते हैं मोहम्मद बिलाल डोगर से। जी बिलाल, क्या तफसीलात हैं? जी बिल्कुल, एशिया की सबसे बड़ी इंडस्ट्रियल स्टेट फेडमी की बात करें तो मसाइल जन्म ले रहे हैं। चेयरमैन जो है वो साबका गवर्नमेंट पीटीआई की टेक्सटाइल पॉलिसी हेड रहे हैं, जबकि इस वक्त गवर्नमेंट है पीडीएम की। तो क्या उनकी कोई बात मानी जाएगी या नहीं मानी जाएगी, इसके ऊपर तहफ़्फ़ुज़ात पूरे शहर के अंदर बातें भी जारी है। ये भी कहना है कि इस सीट के ऊपर सबकी नजरें हैं, जबकि साबिक बोर्ड के मेंबर हमारे साथ मौजूद हैं ख्वाजा अमजद साहब, जो कि एक सीजन इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, इनसे बात करते हैं। ख्वाजा साहब, क्या लग रहा है, मसाइल वहाँ बढ़े हैं, फॉरेन इन्वेस्टमेंट कैसे आएगी, अपने इंडस्ट्रीज तंग हैं, प्लॉट कैंसिलेशन चल रही है, चेयरमैन कुछ कहना चाहेंगे, वो कहेंगे मैं तो खुद दूसरी जमात से हूँ, तो क्या इस सीटों से उतर जाना चाहिए, अपने आप की इज्जत बचा लेनी चाहिए, या इस फेडमी को बचा लेना चाहिए? शुरू में तो वहाँ कोई जाता नहीं था और बड़ी मुश्किल से हमने प्लाट सेल करने शुरू किए। इसकी एक फ़िलासफ़ी ज़हन में रखें कि ये पब्लिक प्राइवेट सेक्टर में ये प्रोजेक्ट बना, और प्राइवेट सेक्टर को इस वजह से शामिल करना पड़ा कि पब्लिक सेक्टर में कॉन्फिडेंस में डिसीजन लेने का, वो लकीर के फ़कीर होते हैं, वो डिले कर देते हैं और अफादियत ख़त्म हो जाती है उस इशू की, उसको इतना डिले करके कोई फैसला करते हैं। प्राइवेट सेक्टर में हम फैक्ट्रियां चलाते हैं, हमने इशू को फौरी एड्रेस करना है और कोई ना कोई उसका हल तलाश करना है। ये बड़ा सक्सेसफुल रहा, ख़ास तौर पर जब चाइनीज़ ने यहाँ आना शुरू किया। बदकिस्मती से जब तेज़ी से इसकी प्रोग्रेस हुई तो कुछ उसमें इम्पेडिमेंट्स भी थे, हर्डल्स भी थी, उसमें कुछ सियासतदान इन्वॉल्व थे। शुक्रिया बिलाल डोगर, हमें अपडेट कर रहे थे। फैसलाबाद के बेशतर खवातीन के कॉलेजेस की इमारतें खतरनाक करार, गवर्नमेंट एसोसिएट कॉलेज फॉर वुमेन गुलिस्तान कॉलोनी की इमारत खतरनाक करार। इसी वाले से मजीद तफसीलात जानते हैं इमरान असलम से। जी इमरान, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, फैसलाबाद के बेशतर तालीमी अदारों की इमारतें खतरनाक करार दी जा चुकी हैं। ताहाल फैसलाबाद के बेशतर कॉलेजेस की जो बिल्डिंग्स हैं महकमा बिल्डिंग की जानब से अधूरी छोड़ दी गई हैं। बजट तो मंजूर हुए, टेंडर हुए, लेकिन ताहाल जो है वो तमीर व मरम्मत का काम मुकम्मल न किया, जिसका फैसलाबाद गवर्नमेंट एसोसिएट कॉलेज फॉर गर्ल्स गुलिस्तान कॉलोनी की इमारत खतरनाक करार दी जा चुकी है। ओल्ड कैंपस को डिमॉलिश करने के हवाले से प्रिंसिपल की जानब से एक्शन महकमा बिल्डिंग को मरासला जारी कर दिया गया है। मरासले के तहत महकमा बिल्डिंग ओल्ड कैंपस की इमारत को डिमॉलिश करेगा, लेकिन ताहाल जो है वो इमारत को ताहाल गिराया ना जा सका, जिसकी वजह से तलबा को जो ज़ेरे तालीम जो नीचे बैठने पर मजबूर हो चुकी हैं। और इसके साथ साथ बिल्डिंग की बात करें तो बिल्डिंग खस्ता हाल है और रिकंस्ट्रक्ट भी ना हो सकी। ओल्ड कैंपस और न्यू कैंपस की जो इमारत है वो ताहाल ज़ेरे तामीर है और ना तो वो तामीर हो सकी। और अगर हम बात करें ओल्ड कैंपस की तो ओल्ड कैंपस शुक्रिया इमरान असलम, हमें अपडेट कर रहे थे। फैसलाबाद में घरों में पालतू जानवर पालने वालों के लिए अच्छी खबर, लाइफ स्टॉक पेट केयर में अब इवनिंग शिफ्ट भी होगी। मरीजों के रश की वजह से शाम के औकात में भी वेटरनरी डॉक्टर ड्यूटी देने के पाबंद होंगे। मजीद जानते हैं अब्दुल रहमान से। जी अब्दुल रहमान, आगाह करें तफसीलात से। जब बात करें लाइफ स्टॉक सेंटर में पेट्स के हवाले से, तो यहाँ पर उनकी देखभाल निगहदाश्त के लिए और उनकी जो केयर करने के लिए मेडिसिन के लिए यहाँ पर अमला बाकायदा तौर पर डिप्यूट किया गया। और इस सिलसिले में जो भी यहाँ पर पेट्स आते हैं तो उनकी कोई भी जो मेडिसिन है या कोई भी उनका मसला है वो फिलफौर हल किया जाता है। और साथ में ये भी बताया जा रहा है कि यहाँ पर इवनिंग में भी अब ये काम होने जा रहा है। तो डिप्टी डायरेक्टर हमारे साथ मौजूद है। डॉक्टर साहब, मुझे बताइएगा क्या डिटेल है आपके पास? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं आपका बड़ा शुक्रगुजार हूँ कि आपने हमें मौका दिया। यहाँ पर जो पेट सेंटर है, एक बात है कि ये सबसे पहला पूरे पंजाब के अंदर गवर्नमेंट सेक्टर में ये इस्टेब्लिश हुआ है और इसका इफ्तिताह हमारे वज़ीर लाइफ स्टॉक साहब ने किया था। उनके इफ्तिताह से लेकर अब तक मैं एक चीज़ देख रहा हूँ कि जो पेट्स हैं वहाँ उनके लोगों का आने का बहुत ज़्यादा रुझान है। और उनकी इसी दिलचस्पी को देखते हुए, क्योंकि अक्सर लोग दफातर में चले जाते हैं। हमें अपडेट कर रहे थे।